Hello everyone, I am Sujin Bhardwaj and today I am going to discuss a very important topic of our syllabus, and that topic is nutrition in human being. So far I think you know very clearly what is nutrition, that is intake of food by the organism and utilize it for getting energy and the material for the different requirements. And we have also studied that there are different mode of nutrition, autotrophic mode and heterotrophic. And you know very well that human beings don't have the ability to prepare their food themselves. So that mode of nutrition in human being is heterotrophic. But in heterotrophic we have already told you, previous videos में आपको बताया गया है कि heterotrophic को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. One is holozoic, second is saprophytic या saprotrophic and third one is parasitic. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं holozoic mode of nutrition. That means food is taken in by the living being, means food is taken by the human beings and this food is consumed for the various needs. Now how this food is consumed and how this food is taken, the various parts of our digestive system we shall try to discuss in detail. The first word which I would like to discuss with you, that is alimentary canal. Alimentary canal. This alimentary canal is also known as the gut. GUT gut. और it is also known as the digestive tract. तीनों वर्ड का मीनिंग एक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. So alimentary canal है क्या? It is actually a long tube which starts from our mouth, जो हमारे माउथ से शुरू होती है and it ends at the anus, जो anus पर जाकर के खत्म होती है. So it is a long tube and be careful, it doesn't have any bone. So it is a total muscular tube. But you know कि अगर फूड की एंट्री यहां से हो रही है हमारे पास, then this food will pass through the various parts and those various parts will have the various, you can say, diameters and various lengths. तो इसलिए हमारा जो elementary canal है that consists of the different parts. Be careful. and इसमें हम कुछ ऐसे organ के बारे में भी स्टडी करते हैं जिनके अंदर से एक्चुअली फूड पास नहीं होता, they just help, like liver, pancreas, gall bladder. इनके अंदर फूड एक्चुअल में नहीं जाता है but still they help to digest our food. So they are also the part of digestive system, but they are not the part of the digestive tract, or you can say they are not the part of the alimentary canal. Alimentary canal is the part through which the food actually transfers, जिसके अंदर से फूड एक्चुअल में ट्रांसफर होता है, पास होता है, एंटर होकर के बाहर निकलने तक जितना पाथ है, that is called alimentary canal. Right? So I'll start from the mouth. मैं माउथ से शुरू करता हूं बात, ठीक है? तो माउथ आप सभी बच्चे जानते हैं, that is the most important part of our body. हमारी बॉडी का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट से आपकी फूड की एंट्री होती है. We can take over here. It is the mouth. And mouth contains the various parts in it. 3 पार्ट मेन रहेंगे. One is tongue, second is the salivary gland and third is the teeth. सभी के अपने अपने रोल है, आप सब बच्चों को पता है. लेकिन डाइजेशन में जो हमारे टीथ होते हैं उनका रोल होता है टू कट एंड ग्राइंड द फूड. हालांकि टीथ के ऊपर पूरा वीडियो बन सकता है. टंग का रोल होता है हेल्प इन मिक्सिंग द सलाइवा एंड आल्सो इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड. और टंग को पकड़ करके आप स्वेलो नहीं कर सकते किसी भी चीज को. एंड salivary gland, that is the important word. Actually this is a pair of 3 glands. 3 ग्लैंड के पेयर होते हैं हमारे पास टोटल यहां पर, और उसमें मेन जो ग्लैंड होते हैं आपकी एक टंग के नीचे होती है, एक ईयर का जो इंटरनल पार्ट होता है वहां पर होती है, और एक हमारा जो मूवेबल जा है उसके साइड में होती है. ठीक है? अब यहां जो मेन रोल रहेगा salivary gland, it releases the saliva. अब ये जो saliva होता है, saliva जब ये रिलीज करती है तो saliva is actually a mixture of water
म्यूकस एंड सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज का रोल होता है, जो आप खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, उस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। सिंपल शुगर बोले तो माल्टोस में कन्वर्ट करता है, यानी स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में। कौन सा केमिकल है, कौन सा एंजाइम है इसमें, सलाइवरी एमाइलेज। एंजाइम एंड हार्मोन दो वर्ड आते हैं बेटा, तो एंजाइम्स आर द केमिकल्स, एक्चुअली दे आर हैविंग द बिग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आगे हम बात करेंगे हमारे अलग अलग पार्ट्स में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपके पास बात हो गई माउथ और सलाइवरी ग्लैंड की। उसके बाद हम बात करेंगे इस लॉन्ग ट्यूब, ये बहुत लंबी सी जो ट्यूब है, ठीक है, ये लंबी सी जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड ओसोफेगस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इट इज अगेन ए टोटल मस्कुलर ऑर्गन, और इसके अंदर जो फूड पास होता है दैट इज ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है बेटा, मस्कुलर जो पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे एक बार कंप्रेस होते हैं, फिर खुलते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर खुलते हैं, ठीक है। ये मस्कुलर है, जैसे फूड इसके अंदर एंटर करेगा, जहां भी फूड है वहां से एक बार थोड़ी सी ऐसे स्वेलो हो जाएगी, फूड अंदर है, जैसे फूड आगे खिसकेगा पीछे वाला पोर्शन दोबारा से अपनी ओरिजिनल थिकनेस में आ जाता है। अब आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या है, सीधा अगर फूड होता तो बहुत बढ़िया ना होती, पाइप सीधी होती खुली, ऊपर से डालते और सीधा नीचे गिर जाता जा करके। ये किसका कनेक्शन करती है, ये माउथ को किसके साथ कनेक्ट करती है, माउथ को कनेक्ट करेगी स्टमक के साथ, इस पार्ट के साथ। इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। बेटा अगर ये ओपन पाइप होता तो अगर आप लेटते तो फिर आपका फूड नीचे नहीं जाता, और बाई चांस आप शीर्षासन करते, इन्वर्टेड पोजीशन में आते, तो आपका नीचे का फूड सारा ऊपर आ जाता, ठीक है, माउथ में आ जाता वापिस। इसलिए ये मस्कुलर होने का हमें फायदा है। नेक्स्ट स्टमक, दिस पार्ट इज स्टमक, बी केयरफुल, ये पार्ट आपका स्टमक है। स्टमक इज ए जे शेप्ड मस्कुलर पार्ट एंड इट स्टोर्स द फूड, ये फूड को स्टोर करके रखता है। कितनी देर के लिए स्टोर करके रखता है स्टमक, स्टमक मैंने देखो यहां एलिमेंट्री कैनाल लिख दिया था, एलिमेंट्री कैनाल लिख करके माउथ से शुरू किया, फिर ओसोफेगस, ये पार्ट मैं यहीं से डिस्कस कर रहा हूं, यहां कब लिखूंगा वहां से ज्यादा डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्टमक दैट इज ए मस्कुलर पार्ट, इट में कंटेन द फूड 1 to 6 hours, इसमें 1 से 6 घंटे तक फूड रह सकता है। लेकिन क्योंकि फूड जो हम खाते हैं उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, तो फूड की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फूड होता है और फैट आपके सबसे लेट डाइजेस्ट होने वाला फूड होता है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। लेकिन याद करिए बच्चे, स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है इट हैज द एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम लिखेंगे भाई हम इसे, एसिडिक मीडियम लिखेंगे। और एसिडिक मीडियम इसके अंदर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जो एक तरह से एसिल इसके पास रहता है इसके अंदर आकर के, तो उसकी वजह से एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि इस फूड के कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो केवल एसिडिक मीडियम में हमारे आप कह सकते हैं डाइजेस्ट होते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें एसिडिक मीडियम कहां से आ गया, तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर का जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, GASTRIC, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और वो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीजें होती हैं, वन इज HCl रहेगा, सेकेंड वन हमारे पास रहेगा म्यूकस, एंड थर्ड वन रहेगा आपके पास पेप्सिन। ये 3 चीजें, ये एसिडिक मीडियम बनाएगा। म्यूकस का काम होता है अंदर की वॉल को कवर करना, यानी प्रोटेक्ट करना, और जो आपके पास पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास ये जो पार्ट है, यहां एक छोटी सी मसल होती है, उसको स्पिंटर मसल बोलते हैं। स्पिंटर मसल इस तरह की होती है जैसे किसी चीज के अंदर आप स्प्रिंग लगा दें। स्प्रिंग लगाने से क्या होगा, एक बार उसका डायमीटर कम हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगी, फिर खुल जाएगा। तो इसलिए जो आपका फूड होता है स्टमक के अंदर स्टोर हुआ, जब भी हम खाना खाएंगे सीधा हमारा स्टमक फुल होता है, जो हमें लगता है कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, दैट इज द सेंसेशन फ्रॉम द स्टमक। लेकिन स्टमक में से फूड धीरे धीरे रिलीज होता है। किस में रिलीज होगा, फूड विल बी रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसका नाम तो स्मॉल है, लेकिन वो बड़ा कमाल का पार्ट है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग। 6 मीटर लॉन्ग है ये। 6 मीटर का मतलब हुआ कि मोर देन 20 फीट। बट ये पूरे का पूरा हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। वी कैन सी ओवर हियर, इट इज द कॉइल्ड फॉर्म। ये कॉइल्ड फॉर्म है। इसको और ज्यादा आप थोड़ा सा कॉइल करके दिखा सकते हैं, बट मैंने क्लैरिटी के लिए इसको इस तरह से दिखा दिया है। बी केयरफुल, हमारे पास जहां स्टमक है, मैंने बताया यहां स्फिंक्टर मसल है, लेकिन इस स्फिंक्टर मसल से जस्ट आगे का जो ये हिस्सा है, ये वाला जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड ड्यूडिनम। DUODENUM। इट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। एंड ड्यूडिनम की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। ड्यूडिनम का खास काम ये होता है कि ड्यूडिनम वो पार्ट है जहां हमारे पास ये जो एक ऊपर बड़ा पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लीवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। साथ में यहां पर हमारे पास एक और छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा, इट इज कॉल्ड ए गोल ब्लैडर। ये पार्ट गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर क्या करता है, लीवर से जो जूसेस आते हैं उनको बाइल जूस बोलते हैं, वो लीवर गॉल ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। अब ये जो गॉल ब्लैडर है और इधर है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में हमारी कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इन दोनों से आकर के एक पार्ट बनता है, एक सी शेप का पार्ट बनता है, उसको हम डक्ट बोलते हैं। तो जो केमिकल यहां से आया और जो केमिकल यहां से आया, ये दोनों केमिकल आकर के यहां ये जो ड्यूडिनम पार्ट है, इस ड्यूडिनम पार्ट में एंटर कर जाते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। याद रहेगी बात। तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा हमारे पास ड्यूडिनम, दूसरा पार्ट है जेजिनम। JEJUNUM। जेजिनम आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने ये पहले वाला बताया, दैट इज 25 सेंटीमीटर ओनली, केवल 25 सेंटीमीटर का है। आगे वाला जो जेजिनम है हमारे पास, उसकी लेंथ ज्यादा होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग। और सबसे लंबा जो पार्ट होता है दैट इज इलम। कई लोग इसे इलियम भी बोल देते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर लॉन्ग। ये 4 मीटर लॉन्ग है। ये सबसे बड़ा पार्ट है। और मजेदार बात ये होती है कि ये जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, इस पार्ट के अंदर कुछ इस तरह के पार्ट्स होते हैं विच आर कॉल्ड विलाइज, जिनको विलाइज बोला जाता है। अब अगर ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसके अंदर यहां पर लाइक दिस, हम कहते हैं कि जैसे हमारे फिंगर्स के ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। एंड दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते आपका जो मीडियम होता है बेटा, वो पूरी तरह बदल जाता है। यहां पर मीडियम एल्कलाइन बन जाता है। किसकी वजह से बन जाता है? इंटेस्टाइनल जूसेस की वजह से। इंटेस्टाइनल जूसेस मींस द जूसेस व्हिच आर रिलीज्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड होते हैं, उन ग्लैंड को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन से पार्ट में होती है? जेजिनम में होती है। याद रहेगी बात। ड्यूडिनम वो हिस्सा है जो बाहर से आने वाले केमिकल को रिसीव करता है। जेजिनम वो पार्ट है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अपने खुद के इंटेस्टाइनल जूसेस ऐड करता है। और इलम वो वाला पार्ट है जहां पर फूड पूरी तरह डाइजेस्ट होता है। इसलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। याद रहेगी बात। थोड़ी स्पीड ज्यादा इसलिए कर रखी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो। उसके बाद अब देखिए, यहां स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश हो रही है। जहां स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश हो रही है, वहां से हमारा सबसे लार्ज पार्ट शुरू हो जाता है। ये लार्जेस्ट पार्ट, दिस वन। अब आप कहेंगे सर इसको लार्ज क्यों कहते हैं? ये केवल डायमीटर का कमाल है। जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है हमारे पास, वो डायमीटर बहुत कम होता है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर इतना कम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये जो लार्ज वाला है, लार्ज वाले का होता है 4 से 6 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, याद रहेगा आपको डायमीटर, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। हालांकि इसकी लेंथ कुल मिलाकर के 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है किसी एनिमल के हिसाब से, लेकिन मजेदार बात यह होती है इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव ग्लैंड।
लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा, इसके बारे में इधर से असेंडिंग सीलम बोलते हैं इसे, इसको ट्रांसवर्स सीलम बोलते हैं और इसको डिसेंडिंग सीलम बोलते हैं। असेंडिंग यानी जो अराइज हुआ पार्ट, और ट्रांसवर्स यानी जो फ्लैट है, और डिसेंडिंग जो डाउन है। बी केयरफुल। लेकिन यहां बच्चे ध्यान करिए, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कंबाइंड टुगेदर, जहां दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। दिस स्ट्रक्चर हैज नो रोल इन आवर बॉडी एक्सेप्ट द प्रॉब्लम क्रिएटिंग। इट इज कॉल्ड अपेंडिक्स, या इसको हम कई बार कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म का मतलब कीड़े जैसा दिखता है ये अपेंडिक्स। इट इज ए टोटल वेस्टिजल ऑर्गन, हमारी बॉडी में एक वेस्ट ऑर्गन है ये, जो कभी फंक्शनल रहा होगा शायद सदियों पहले, बट आपकी बॉडी में अभी कोई काम नहीं करता है। हाँ, ये ब्लाइंड पार्ट है। ब्लाइंड पार्ट का मतलब इसके अंदर जा तो सकता है फूड, वापस नहीं आ सकता। इसलिए इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर फूड पार्टिकल गलती से इसमें एंटर कर जाते हैं तो वहां पर फूड पार्टिकल सड़ना शुरू हो जाएंगे, डिके होना शुरू हो जाएंगे, इसमें स्वेलिंग आएगी एंड इट विल क्रिएट पेन। तो जब भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर इसको कट करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो इट इज द टोटल वेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे रैबिट है या मंकी वगैरह है, वहां पर ये फंक्शनल है, हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं है। याद रहेगी बात आपको? तो ये आप बात कर रहे थे हम अपेंडिक्स की। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का दोबारा बता दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है। किस बात में स्पेशलाइज्ड है? कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर कोई गलती हो गई हो, कोई चीज यूजफुल थी और स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसे अब्सॉर्ब नहीं किया, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होती हैं जो यूजफुल न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। उन विलाइज के पास ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो उस न्यूट्रिएंट को ब्लड में शामिल कर लेते हैं और ब्लड से फिर वो न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी की सेल्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है या हमेशा कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो एक जगह फिल्टर आउट नहीं हो पाती पूरी तरह, तो इसलिए जो यहां न्यूट्रिएंट अगर बच गया तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, कोई अगर ऐसा अनएब्सॉर्ब्ड मटेरियल रह गया है और वो अगर यूजफुल है, पर्टिकुलरली वाटर और डिजोल्व्ड साल्ट्स, उनको ये रीएब्सॉर्ब कर लेती है, दोबारा से एब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर लाइक बन जाता है फूड, वाटर तो नहीं कहेंगे, वाटर लाइक कहेंगे, यहां तक आते आते वो सेमी सॉलिड हो जाता है। एंड नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम। इस पार्ट को हम रेक्टम बोलते हैं। ये रेक्टम हमारा जो फीकल मैटर होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में लैट्रिन बोलते हैं, टोटल सॉलिड वेस्ट है वो, ये जो आपका रेक्टम होता है उसको स्टोर करके रखता है टेम्परेरीली। एंड एनएस, दिस इज द आउटलेट। जैसे माउथ आपका इनलेट था, एनएस आपका क्या है, आउटलेट है, ठीक है। तो इस तरह से एनएस से आपकी बॉडी का जो भी फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर होगी बात? अब मैंने साथ में ये बताया था कि ये तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ये फूड ने यहां से एंटर किया, माउथ से एंटर किया, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा ऐड किया, उसमें सलाइवा ऐड करने से फूड आपका सॉफ्ट हो जाता है और जैसे मैंने बताया उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिससे आपका डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं उनके डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। सॉफ्ट फूड अगर नहीं होगा तो आप स्वेलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका एक तरह से भूख बढ़ाने का काम भी करता है। मुंह में पानी आना सुना होगा ना, वो पानी यही होता है जो आपके पास सलाइवा माउथ में रिलीज होता है। इट इज इंपॉर्टेंट। हिंदी में हम इसको लार कहते हैं, तो मुंह में लार आना ठीक है, लार टपकना बुरी बात है, टपकनी नहीं चाहिए। तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान करना है। अब यहां से फूड ने एंट्री मारी, उसके बाद फूड हमारा आया कहां पर, सीधा आता गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर से ड्यूडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में चला गया, लार्ज से रेक्टम में आया, रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर निकल गया। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस गोल ब्लैडर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियास? तो हमारे पास ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं, दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बच्चे याद रखेंगे, लीवर इज द लार्जेस्ट रेडिश ब्राउन ग्लैंड इन आवर बॉडी which produces bile। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, बाइल जूसेस कह सकते हैं आप। लेकिन बी केयरफुल, इसमें साल्ट्स होते हैं लेकिन एंजाइम नहीं होते। और ये जो बाइल जूस होते हैं हमारे पास, वो किस काम के लिए रहते हैं, इस बात का ध्यान करेंगे। जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, जो चिकनाई आप खाते हैं, उस चिकनाई को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आप बच्चों ने कभी इमल्सिफिकेशन एक वर्ड पढ़ा हो, एमल्सिफिकेशन का मतलब जैसे सोप काम करती है चिकनाई वाली चीजों पर, सोप आपने सुना होगा ना, हाथों पर चिकनाई किसी भी तरह की सोप अप्लाई करी तो आपके फैट्स डिजोल्व हो जाते हैं उसमें,
ठीक है। तो इसी तरह से ये जो बाइल जूस होते हैं फैट्स को डिजोल्व करते हैं, यानी फैट्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर हमारे पास, जैसे मैंने पहले बता दिया था, इट इज ए येलोइश ग्रीन स्मॉल सैक, बहुत छोटा सा पार्ट होता है और ये आपके बाइल जूसेस को टेम्परेरीली क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास दैट इज पेंक्रियास। पेंक्रियास जैसे मैंने बता दिया आपको, इट इज पेंक्रियास, ये आप पेंक्रियास कह सकते हैं। इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड इट लाइज इन द लूप। ये जो आपका ड्यूडिनम है, इस ड्यूडिनम के लूप के अंदर यानी उसके घेरे के अंदर ही रहता है। एंड इट आल्सो रिलीजेस, जब हम पेंक्रियास की बात करते हैं तो पेंक्रियास रिलीजेस 2 टाइप ऑफ केमिकल्स, 2 तरह के केमिकल ये रिलीज करता है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि एक आपके पास पर्टिकुलरली इंसुलिन है एंड सेकंड इज ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। जैसे शुगर लेवल राइज करता है तो उसको डाउन करने की कोशिश करता है एंड इस तरह मिलकर के हमारे पास जो पेंक्रियास है, पेंक्रियास का काम होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। पेंक्रियास को कई बार आगे चल करके हम किसी चैप्टर में आपसे बात करेंगे। पेंक्रियास को हम ड्यूअल नेचर का या मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि हार्मोन्स भी रिलीज करता है और ये एंजाइम्स भी रिलीज करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप बिल्कुल शुरू में रोक करके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उन पार्ट्स को फिर दोबारा वन बाय वन पढ़ें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज comment me, and if you have a liking about it, then ask your friend to see it. ठीक है, I hope ये आपको पसंद आया होगा। Thank you very much. Stay safe, stay